السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome my dear sisters. Monday evening. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي اشرح لساني يفقهوا قولي. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Welcome my dear sisters. ہم پڑھ رہے ہیں پارا نمبر 1 سورت البقرہ آیت نمبر 84 onwards انشاءاللہ. آیت 84 what word ہوگا پہلے؟ Are you ready چاند آنٹی؟ آیت نمبر 84. بسم اللہ الرحمن الرحیم. on the screen. Yeah, جزاک اللہ خیر. Which para is this, auntie? We want para number 1, Surat Al-Baqarah 84. جی ہاں 1 minute. I'm so sorry, I've done from 84 on this. No issues. آیت 84. وہ اس اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ تم سے. This is not the right thing, auntie. لا تسفکون نہیں تم بہاؤ گے دماءکم خون اپنوں کا اپنے بھائیوں کا. ولا اور نہیں تخرجون اور نہیں تم نکالو گے انفسکم اپنوں کو من دیارکم تمہارے ان کے گھروں سے. نہیں تم نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے. ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے وعدہ مان گئے تم. وانتم تشہدون اور تم خود گواہ ہو. آیت 85 بھی کریں گے بٹ ورڈ. چاند آنٹی آپ کا ویڈیو آن ہے. I have stopped it. ثم پھر انتم تم ہؤلائی تم وہی لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم نفسوں کو تمہاری یعنی اپنے لوگوں کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو خارج کرتے ہو فریقاً ایک فریق کو ایک گروپ کو منکم تم ہی میں سے
यानी एक ग्रुप को क्या करते हो तुम, उनके घरों से निकाल बाहर करते हो, यू एविक्ट देम, मिन दियारिहिम, उनके घरों से, तज़ाहरुना अलैहिम, तुम चढ़ाई करते हो, हमला करते हो उन पर, बिल इस्मी, गुनाह के साथ, वल उद्वान, और ज्यादती के साथ, व इन यातुकुम, और अगर वो आए तुम्हारे पास, उसारा, कैदी बनकर, प्रिजनर्स बनकर, तुफादूना, तुम फिदिया देते हो उनका, रैंसम पे करते हो, बेल आउट करते हो, वह हुआ मुहर्रमुन, और वो हराम किया गया तुम पर, अलैकुम, तुम पर, इखराजुहुम, निकालना उनका, सबसे पहले उनको निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। अफतुमिनूना, अब ये क्वेश्चन है, क्या, फिर, तुमिनूना, क्या फिर तुम ईमान रखते हो, बिबादिल किताबी, किताब के आधे हिस्से पर, कुछ हिस्से पर, do you believe in some part of the book, वतकफुरूना, और क्या तुम इनकार करते हो, बिबाज, कुछ हिस्से का किताब के, फमा, फिर नहीं, जजाउ, फिर नहीं कोई जजा, रिवॉर्ड, मैं यफअलू, जो वो ऐसा करे, ज़ालिका, ये, मिनकुम, तुम में से, जो कोई करे ऐसा तुम में से, इल्ला, सिवाय, खिज़युन, सिवाय क्या है, रुसवाई, ह्यूमिलिएशन, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, वयौमिल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, वो लौटाए जाएंगे, इला अशद्दिल अज़ाब, इला, तरफ, अशद्दी, सख्त, शदीद, सीवियर, अजाब, पनिशमेंट, सीवियर पनिशमेंट की तरफ, वमल्लाहु बेगाफिलिन, और नहीं है अल्लाह गाफिल, अम्मा तामलून, उससे जो कुछ तुम अमल करते हो, उससे अल्लाह बिल्कुल गाफिल नहीं है। थोड़ी लंबी आयतें हैं, 84 और 85, we'll see it in English as well, inshallah. Wa iz akhazna mithaqakum, and when we took, Allah Ta'ala took, mithaqakum, your covenant, promise. What was the promise? See, we'll count what promises. La tasfikuna dima'akum, number 1, that you will not shed blood of your own people. Wala tukhrijuna, and you will not evict, remove, anfusakum, your own people, min diyarikum, from their homes. Summa akrartum, then you accepted, ratified. Wa antum tashhadun, and while you were witnessing. Ayat 85. Summa antum, then all of you, haula'i, are those people, taqtuluna anfusakum, who killed your own people. You are the people that you killed your own people. وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ, and you evicted, you removed your own people, min diyarihim, from their homes. You evicted your own brothers from their homes. Tazaharuna alayhim, also you went against them to fight against them.
bil ismi wal udwan, with lot of sin and transgression. Wa in ya'tukum, and when they came to you, usara, when they were prisoners, tufaduhum, then you ransomed them. You ransomed them while it was forbidden, wa huwa muharramun, haram, forbidden, alaykum, upon you, ikhrajuhum, their eviction in the first place. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi, so do you believe in some part of Allah's book? Wa takfuruna bi ba'd, and do you disbelieve in some part of Allah's book? Fama jaza'u, then what will be the recompense? May yaf'alu, of whoever does dhalika, this, minkum, from amongst you, illa khizyun, except humiliation in this life, wa yawmal qiyamati, and on the day of resurrection, yuradduna, they will be sent back, ila ashaddil azab, to the most severe punishment, wa mallahu bighafilin, and Allah is not unaware, amma ta'malun, of whatever you do. Allahu Akbar. So now इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने एक और प्रॉमिस जो इनसे लिया था, किससे? बनी इसराइल से। जो पिछली आयत हमने पढ़ी, आयत 83, we studied it in detail for 3 classes. Alhamdulillah, 1 ayat in 3 classes. MashaAllah, and what details we have studied. कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता करे। तो उस आयत में भी अल्लाह ने प्रॉमिसेस लिए थे बनी इसराइल से। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने अब कुछ और प्रॉमिसेस लिए बनी इसराइल से। उसमें क्या थे? डूज, कि एहसान करो अपने वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ, यतीम मिस्कीन लोगों से अच्छी बात करो, और अल्लाह का हक अदा करो, शिर्क ना करो, नमाज कायम करो, ज़कात अता करो। अभी इस आयत में अल्लाह ताला क्या प्रॉमिस ले रहे हैं? नंबर 1, कि क्या नहीं करो? अपनों का खून नहीं बहाओ। अपनों का कौन होते हैं? योर ओन पीपल, चाहे वो रिश्तेदार हो, बट तुम्हारा कबीला, तुम्हारे भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम सब मोमिन एक दूसरे के भाई हो, तो क्या करो? एक दूसरे का खून मत बहाओ। डू नॉट किल, डू नॉट क्वारल, एंड एक दूसरे पर हमला, जानलेवा हमला ना करो। ओके। नंबर 2 ऑर्डर क्या था? कि अपने ही भाइयों को, अपने लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती ना निकालो। Got it? What are the 2 promises, चांद आंटी? जी, कि उन्होंने पक्का वादा लिया कि नहीं खून बहाओ अपने भाइयों का, एंड सेकंड वाज अपने भाइयों को, अपने लोगों को उनके घरों में से मत निकालो। वेरी गुड। और अल्लाह ताला फरमाते तुम इस चीज के गवाह हो, यू आर द विटनेस। फिर अल्लाह ताला फरमाते कि तुमने क्या किया? तुम वही लोग हो कि तुम कत्ल करते हो अपने ही भाइयों का, अपने ही लोगों का, और तुम उनको निकालते भी हो घरों से, और तुम उनके खिलाफ लड़ाई भी करते हो, जंग भी करते हो, और गुनाह और ज्यादती भी करते हो। और फिर जब वो तुम्हारे भाई प्रिजनर्स बन के तुम्हारे पास आते हैं, तब तुमको बहुत रहम आता है उन पर। फिर तुम उनका रैंसम पे करते हो, उनको बेल करके छुड़ाते हो। तो सबसे पहले तो तुम पर यही हराम था कि उनको अपने घरों से ना निकालो। तो क्या तुम अल्लाह के कुछ ऑर्डर्स को मानते हो और कुछ ऑर्डर्स को छोड़ देते हो? अल्लाह की किताब का कुछ हिस्से पे तो अमल करते हो और बाकी हिस्सा छोड़ देते हो? ये क्वेश्चन किया अल्लाह ताला ने। Do you believe in some part of Allah's book and you forget the other? तो फिर क्या होगा बदला ऐसे लोगों का? कि दुनिया में उनके लिए रुसवाई, ह्यूमिलिएशन, जिल्लत, ऑपोजिट ऑफ इज्जत, जिल्लत, और आखिरत में शदीद अजाब, सीवियर मोस्ट पनिशमेंट।
तो इस आयत में जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देखेंगे. आयत किससे है? बनी इसराइल से अल्लाह ताला फरमा रहे, राइट. अभी जो लोग सीरियसली नोट्स बनाते हैं, तो इफ यू कैन नोट डाउन सम नेम्स, है ना, 2 कबीलों की बात हो रही है यहाँ पर. तो ये दोनों यहूदी कबीले थे. अगर आप लिख लोगे और समझो अभी नहीं भी समझ आया, तो इंशाल्लाह जब 1-2 बार आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, तो इंशाल्लाह समझ आएगी बात. और अभी भी क्यों नहीं आएगी, हम लोग सब समझदार लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सिर्फ 2 नाम आपको लिखने हैं. आप ऊपर हेडिंग दीजिए, यहूदी कबीले, 2 ग्रुप्स ऑफ ज्यूज. नंबर 1, बनु नजीर. बनु नजीर क्या है चांद आंटी? बनु नजीर. बनु नजीर फर्स्ट ग्रुप. नंबर 1 फर्स्ट ग्रुप. सेकंड ग्रुप बनु कुरैजा. सेकंड ग्रुप बनु कुरैजा. कुरैजा, हाँ, बनु कुरैजा. ओके, तो ये दोनों यहूदी कबीले थे. ओके, अभी दोनों यहूदी कबीले, तो एक्चुअली क्या हुए? भाई भाई हुए ना. तो ये जो प्रॉमिस लिया गया था कि आपस में एक दूसरे का खून मत बहाओ. अब क्या हुआ कि ये लोग मदीना के आसपास रहते थे. अभी जो अरब के कबीले थे, अभी आप एक दूसरी तरफ हेडिंग दीजिए, अरब के कबीले, और 2 नाम लिखेंगे. ऑपोजिट सामने साइड भी लिख सकते हो आप. अरब के कबीले, अरब ग्रुप्स. नंबर 1 औस. नंबर 1 औस. और नंबर 2 खजरज. खजरज, ठीक है. अरब के कबीले कौन से चांद आंटी? नंबर 1 औस. और नंबर 1, सेकंड इज खजरज. हाँ, नंबर 1 इज औस, नंबर 2 औस, खजरज. हाँ, यस. अब क्या हुआ कि ये जो यहूद के कबीले हैं, बनु नजीर हमने पहला लिखे ना, तो बनु नजीर ने अपनी दोस्ती बनाई, एग्रीमेंट किया अरब के कबीले खजरज के साथ, जो सेकंड कबीला है अरब का. तो ऐसा आप ऑपोजिट में क्रॉस कर लीजिए, जैसे मैच द कॉलम करते थे. तो बनु नजीर की दोस्ती किससे हुई? खजरज से. और बनु कुरैजा की दोस्ती हुई औस कबीले से. ओके, अब क्या हुआ कि इनकी दोस्ती पहले ऐसी होती थी, एग्रीमेंट्स, कि मेरी जान तेरी जान, हाँ, मेरी लड़ाई तेरी लड़ाई, मेरी दुश्मनी तेरी दुश्मनी. तो जब कबीलों के बीच में दोस्ती होती, तो फिर वो दोस्त भी आपस में कॉमन हो जाते, और एक का दुश्मन है एक कबीले का, तो फिर वो दूसरे कबीले का भी उससे दुश्मनी हो जाती. दिस इज हाउ दे सपोर्टेड देम. तो क्या होता कि जब औस और खजरज दोनों अरब के कबीले, जब उनके बीच में लड़ाई होती, औस और खजरज दोनों कौन से कबीले हैं? अरब के कबीले. तो जब उनके, नहीं, अरब के कबीले, औस और खजरज कौन से कबीले हैं? अरब के कबीले. तो उन दोनों के बीच में कभी लड़ाई होती, झगड़ा होता. ओके, तो ये जो यहूद के कबीले जिन्होंने उनसे दोस्ती की थी, उनको भी लड़ाई करने आना पड़ता. तो वो दोनों जो ज्यूज के ग्रुप थे, वो ऑपोजिट साइड में खड़े हो जाते, बराबर, दुश्मन बनकर एक दूसरे के. गॉट इट? जी हाँ, यस. हाँ, बिकॉज वो अरब के कबीलों से दोस्ती की हुई है. अब अरब आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको भी सपोर्ट करना पड़ रहा है. तो बिकॉज अरब आपस में लड़ रहे हैं, इन्होंने दोस्ती की हुई है, सो दे हैड टू सपोर्ट. अब दोनों कबीले ज्यूज के आपस में आमने सामने दुश्मन बन के खड़े हैं. अब दुश्मन बन के जंग के मैदान में खड़े हैं, तो दे हैड टू किल देयर ओन ब्रदर्स, इजंट इट? बिकॉज सामने लड़ाई करने आ गए. Yes. Isn't it? हाँ, तो ये जो आयत में आया कि तुम तो अपने ही भाइयों का खून बहा रहे हो, तो हुआ ना कि उन लोग खून बहा रहे थे और कत्ल भी कर रहे थे और दुश्मन भी बने हुए थे. और फिर जो कबीला जीत जाता, बराबर, जो पार्टी जीत जाएगी, वो क्या करेगी? दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करेगी ना, सामने वाले की. जी हाँ. तो उनको उनके घरों से निकाला कि नहीं निकाला? निकाला, उनकी प्रॉपर्टी ले लिया निकाला. ना. उनकी प्रॉपर्टी हड़प कर गए, बिकॉज जीत गए.
तो अभी ज्यूस कबीले ने ही दूसरे ज्यूस कबीले को घरों से भी निकाला, उनको कत्ल भी किया, उनके साथ दुश्मनी भी की, उनके साथ लड़ाई भी की, isn't it? तो ये सारी प्रॉमिसेस जो अल्लाह ने ली थी उनसे, उन्होंने वो सारी प्रॉमिसेस तोड़ने लगे बिकॉज ऑफ दिस रीजन. फिर क्या होता कि उनमें से जो लोग कैदी बनकर आते ना, उनको हथकड़ी पहना के ले आते कि ये सारे कैदी बना लिए गए, तो फिर इनको बुरा लगता. फिर क्या करते कि बड़ा रहम आ रहा है हमको, अभी हम इनका क्या करेंगे, रैंसम पे करेंगे, बेल पे करेंगे, इनका फिदिया देंगे और इनको छुड़ा लेंगे. तो सोचते थे कि हमने बहुत बड़ा काम किया, बहुत रहम दिल है हम, और हमने अल्लाह की बात मानी. तो अल्लाह ताला फरमाते तुमने अल्लाह की क्या बात मानी? सबसे पहले जो काम करने का था कि लड़ाई नहीं करनी थी, खून नहीं बहाना था, झगड़ा नहीं करना था, वो तो सारा कुछ तुमने किया. और एंड में बेल आउट करके बड़ी शान समझते हो, बड़ी इज्जत समझते हो. तो ये कोई इज्जत नहीं है, ये बहुत गलत काम है अल्लाह के नजदीक. इसीलिए दुनिया में तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, सिर्फ जिल्लत और रुसवाई. व्हाट इज द वर्ड हियर फॉर जिल्लत एंड रुसवाई? खिज़युन. खिज़युन, रुसवाई, जिल्लत, opposite of izzat, that you will be humiliated in this world for what you have done. और आखिरत में there will be severe most punishment for you, because Allah is not unaware of what you do. Allah गाफिल नहीं उससे जो तुम अमल करते हो. Got it now? क्या पढ़े हमने आज, समझ में आई आयत? जी हाँ. हाँ, तो हमें एक हदीस भी मिलती है, मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, देखिए. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान की जान, माल और इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है. हर मुसलमान की जान, नंबर 1 जान, नंबर 2 माल और नंबर 3 इज्जत, तीनों चीज दूसरे मुसलमान पर हराम है. व्हाट डज दिस मीन? यानी दूसरों की जान, माल और इज्जत की हमको हिफाजत करनी चाहिए. दूसरे मुसलमान की, राइट. अगर तुमने उसको छीनने की कोशिश की, उसकी इज्जत उछालने की कोशिश की, उसका माल लूटने की कोशिश की, या उसका जान लेने की कोशिश की, तो वो तीनों भी तुम पर हराम है. गॉट इट? तो हमने जो सिर्फ हराम समझ के रखा है ना 4 चीजों को, क्या क्या समझते हम लोग कि क्या क्या हराम समझते हैं? सूद और सुअर का गोश्त और शराब, है ना. लेकिन अभी हराम की लिस्ट आ रही है और आगे, कि किसी मुसलमान की इज्जत से खेलना. और हम लोग कितने आसानी से किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की इज्जत उछालते हैं. तो क्या ये काम हराम है या हलाल है, जायज है या नाजायज? नाजायज, हराम. Isn't it? तो इंशाल्लाह आज से हम लोग सब नियत करेंगे कि हम इस हराम से भी बचेंगे, कि किसी मुसलमान की इज्जत से नहीं खेलेंगे. और क्यों मुसलमान, किसी की इज्जत से नहीं खेलेंगे इंशाल्लाह. चाहे वो जबान से हो, गाली से हो, इशारों से हो, किसी के राज, है ना, किसी के सीक्रेट्स, या किसी के घर में कोई गलत काम हुआ भी है तो व्हाई डू यू हैव टू उसका ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है हमको? हम क्यों उसकी इज्जत उछालने में पार्ट बनते हैं? isn't it? सो ये भी हराम काम है. और किसी का माल गलत तरीके से खाना, चोरी डाका, वो भी हराम है. और क्या है थर्ड? जान, माल और इज्जत. और जान था ना, कि जान भी किसी की, यानी मारना किसी को, किसी का कत्ल करना, किसी को तकलीफ पहुंचाना जिस्मानी. सो एनी फिजिकल हर्ट इज ऑल्सो हराम ऑन अस. जान लेना तो कबीरा गुनाहों में से. अल्लाह अकबर. ओके,
फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. सो जो क्वेश्चन इस आयत में अल्लाह ताला ने किया कि क्या तुम अल्लाह की कुछ ऑर्डर्स को मानते और कुछ ऑर्डर्स को नहीं मानते. अब यहाँ पे भी हमें अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं और आप ऐसा करते कि जो काम अल्लाह के कुरान में से जो ऑर्डर्स हैं जो मुझे इजी लगते हैं वो मैं आराम से कर लेती हूँ, जो मुझे मुश्किल लगते हैं मैं छोड़ देती हूँ. तो क्या आई एम अलाउड टू पिक एंड चूज? दिस इज द No. क्वेश्चन, है ना. हम कुरान में आगे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम में कैसे कि आ जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ कंप्लीटली 100%. यू कैन नॉट पिक एंड चूज. इस्लाम में कैसे आना है? पूरा का पूरा. आधी अल्लाह की मर्जी और आधी मेरी मर्जी नहीं चलेगी इंशाल्लाह. ओके, दैट इज व्हाट वी हैव टू टेक फ्रॉम हियर इंशाल्लाह. और जो कुछ हम अल्लाह से सुनते हैं कुरान पाक में, तो एक मोमिन वो होता है, वो कहता है समिअना व अताअना, सुना हमने और हम उस बात को मानेंगे, उस पर अमल करेंगे. समिअना व अताअना, सुना हमने और हम इताअत करेंगे. वी हियर एंड वी ओबे. और बनी इसराइल क्या कहते थे? समिअना व असैना, सुना हमने और हम नहीं मानते. अल्लाहु अकबर. सो वी हैव टू चूज कि हम कौन सी कैटेगरी में आना चाहते हैं. ओके, समझ में आ गई ये दोनों आयतें आंटी? जी हाँ. अल्हम्दुलिल्लाह. चल फिर आगे बढ़ते हैं. आयत नंबर 86. उस पे जाने से पहले व्हाट वाज द लास्ट पार्ट? वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा ताअमलून. ये हम सब के लिए है कि अल्लाह गाफिल नहीं. अल्लाह इज नॉट अनअवेयर ऑफ व्हाटएवर यू डू. हमारे कोई डीड्स, कोई अमल से अल्लाह गाफिल नहीं. इसका क्या मतलब है फिर? अगर अल्लाह गाफिल नहीं, दैट मीन्स व्हाट? अल्लाह हर वक्त हमको देख रहा है हम क्या कर रहे हैं और फरिश्ते लिख रहे हैं. एग्जैक्टली, है ना. तो हमारा हर अमल इट इज अंडर सर्वेलेंस. ये वर्ड्स अभी हमको समझ में आते हैं. सर्वेलेंस, सीसीटीवी कैमरा, रिकॉर्डिंग, है ना. तो पहले के लोगों के लिए तो ये समझना भी कितना मुश्किल होता होगा ना. वो लोग सोचते होंगे कि कैसे अल्लाह हर जगह, हर वक्त, हर एक पर नजर रखे हुए है. बट टुडे वी नो कि अगर सीसीटीवी कैमरा है, टेक्नोलॉजी से हमें बात समझ में आती है ना कि इट इज नॉट डिफिकल्ट. तो टेक्नोलॉजी तो इंसान ने बनाई है, सीसीटीवी कैमराज इंसान ने बनाए हैं. बट अल्लाह ताला वो तो सुपर पावर है, सब पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल. तो अल्लाह अल्लाह के लिए क्या वो मुश्किल है कि वो हमारे हर अमल पर नजर रखे, उसकी खबर रखे और उससे गाफिल ना हो. इससे ये बात भी आती है कि फिर मुझे कितना अलर्ट मोमिन बनना है. 24/7, 24 घंटा मुझे अलर्ट रहना है कि मेरा कोई अमल मैं करती हूँ तो मुझे अल्लाह को नाराज नहीं करना है. क्या मैं कोई अमल ऐसा करती हूँ जो कुरान के खिलाफ जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स के खिलाफ जाता है? So I have to be very careful, inshallah. That is my take. आगे बढ़ते हैं. आयत नंबर 86. उलाइक, वही लोग, अल्लज़ीना, जिन्होंने, इश्तरौल हयात दुनिया, इश्तरौ खरीद ली, सौदा कर लिया. किस चीज का? अल हयात दुनिया. हयात कहते हैं जिंदगी को, दुनिया की जिंदगी को. दुनिया वर्ड हम लोग रोज यूज करते हैं ना एवरीडे लाइफ में, वही वर्ड है ये. दुनिया की जिंदगी का सौदा, डील, बिजनेस. किसके साथ? किसके बदले? बिल आखिरती, आखिरत के बदले. इन एक्सचेंज ऑफ आखिरा. फला, फिर नहीं, युखफ्फफु, फिर नहीं हल्का किया जाएगा.
anhum, unse. Azabu, azab, punishment. Walahum yunswarun, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे. नस्र कहते हैं मदद को. In English, ulaika, these are those people, allazina ishtarau, those who bought, who made a business deal, al-hayat ad-dunya, of this worldly life, bil akhirati, in exchange of the hereafter. Fala yukhaffafu, then it won't be lightened. What will not be lightened? Anhumul azab, from them the punishment will not be lightened, reduced. Walahum yunsarun, and they will not be helped. They will not be helped. Allahu Akbar. तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये ही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की कुछ बात मानी, कुछ नहीं मानी. इन लोगों ने क्या कर लिया? सौदा कर लिया. व्हाट अ बिजनेस डील, कि इसमें उन्होंने थोड़ी सी दुनिया की जिंदगी के फायदे के लिए जो दोस्ती कर ली थी ना औस और खजरज के साथ, दुनिया के फायदे के लिए, तो ये दुनिया की पार्टनरशिप ने क्या किया? बिजनेस डील ने उनकी आखिरत को बर्बाद कर दिया. सो दे सोल्ड ऑफ देयर आखिरत for this worldly life. That is why their punishment will not be reduced. उनका अजाब बिल्कुल कम नहीं किया जाएगा आखिरत के दिन, यानी उन पर रहम नहीं किया जाएगा और वो कोई मदद नहीं दिए जाएंगे. क्यों रहम नहीं किया जाएगा? कि अल्लाह ने उनके लिए किताब नाजिल की, उनसे प्रॉमिस लिया, उनके पास नबी भेजे, सब कुछ जानबूझकर, मालूम होते हुए, in spite of having all the knowledge, उन्होंने दुनिया को प्रेफरेंस दिया over their आखिरा. What did they do? What was their mistake? They preferred this dunya over the आखिरा. And what was their deal? It was a wrong deal. Business that took them into loss. कैसा लॉस? हमेशा का लॉस, परमानेंट लॉस. एंड दे विल नॉट बी हेल्प्ड, यानी वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे. अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर. सो हमें कैसे चॉइसेस करनी है हमारी डेली लाइफ के अमल. हर अमल फूक फूक कर, हर कदम फूक फूक कर रखना है, isn't it? दिस कुरान, हमारे पास भी कुरान है, हमारे पास भी सुन्नत है, हमारे पास भी अब हमको कुरान समझने का भी मौका मिल गया है. तो इसके बाद भी अगर हम अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ दुनिया को सामने रख के करते हैं तो फिर नुकसान उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? बताओ. उठाएंगे. यस. तो अभी हमको आज नियत करनी है इंशाल्लाह कि जो भी पढ़ रहे हैं ना उस पर अमल करना शुरू करना है इंशाल्लाह. इस शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लेकिन हमें जमे रहना है. वी हैव टू बी फर्म फुटेड इंशाल्लाह कि अल्लाह ये मुश्किल लग रहा है बट तू इसे आसान कर दे. मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कोई नुकसान नहीं उठा सकती. आई कैन नॉट अफोर्ड कि मेरा आखिरत का नुकसान, कि मैं तुझे नाराज करूं. तो अल्लाह जैसा भी मुझसे हो रहा है ना टूटा फूटा अमल, इसको तू परफेक्ट कर दे. मुझे ताकत भी दे, हिम्मत भी दे कि मैं तेरे हर हुक्म की पैरवी कर सकूं इंशाअल्लाह. So here we have completed रुकू नंबर 10. इंशाल्लाह 11th रुकू शुरू होगा यहाँ से, आयत नंबर 87. वो और लक़द, लक़द बेशक, आतैना अता की हमने, हम कौन? अल्लाह ताला ने अता की मूसा अलैहिस्सलाम को,
अल किताब खास किताब, तौरात उसके नीचे लिख लीजिए, अल किताब के नीचे तौरात। क्या हम ये वर्ड यूज करते हैं रोज? किताब वर्ड यूज करते हैं नहीं? यूज करते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुरान में कितने ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं? अभी दुनिया वर्ड आया था या नहीं? आखिरत वर्ड आया था ना, इजी टू अंडरस्टैंड। गाफिल वर्ड आया था, अजाब पनिशमेंट समझ में आते हैं। तो दीज वर्ड्स आर सो कॉमन कि हमारे लिए बहुत कम वर्ड्स है जो हमको सीखने हैं, isn't it? तो बेशक अता की हमने, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अल किताब यानी तौरात, वक़फ़ैना और पीछे भेजे हमने, उनके बाद, मिन बादिही उनके बाद। देखिए बाद बोलते हैं हम लोग, इसके बाद, उसके बाद, आफ्टर दैट, तो वही वर्ड है ये बाद। हाउ इजी। जब ऐसे इजी वर्ड्स आते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र अदा करूं मैं कि मैं अरबिक पढ़ रही हूँ कि हिंदी उर्दू पढ़ रही हूँ। कितना इजी कर दिया है तूने, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब नाम आ जाते मूसा अलैहिस्सलाम, तो वो भी हमको पता है, कोई मुश्किल नहीं। फिर क्या आया? बिर रुसुली, कई रसूल। देखिए बिर रुसुली है, दैट इज प्लूरल, प्लूरल है ये, कई रसूल। ठीक है। वह आतईना और अता की हमने यानी अल्लाह ताला ने ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है फर्स्ट टाइम अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, इब्ने का मतलब होता है बेटा, सन ऑफ मरियम अलैहिस्सलाम। अल बय्यिनाती, क्या आता की? अल बय्यिनाती, खुली निशानियां, मौजज़े, क्लियर साइंस। व अय्यदनाहु और हाथ मजबूत किया हमने। अय्यद में हाथ वर्ड आता, तो अय्यद ना हाथ, मजबूत किया, हाथ थाम लिया हमने, हु उसका, हु किसके लिए? ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। किसके साथ हाथ मजबूत किया? मदद की। हाथ मजबूत करने का मतलब क्या होता है? मदद करना। किसने मदद की? बिरूहिल कुदूस। रूह का मतलब क्या होता है? सोल। यहाँ पर किसके लिए है? फरिश्ते के लिए। कौन से फरिश्ते? अल कुदूस, सबसे ज्यादा पाक दामन फरिश्ता कौन है? जिब्रील अमीन, फरिश्तों के सरदार, उनका जिक्र है यहाँ पर। पूरे कुरान में जहां भी रूहुल कुदूस आएगा तो आप समझ जाइए कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए। फिर आप क्वेश्चन कर रहे अल्लाह ताला, क्या, फ फिर, कुल्लमा जब कभी, फिर क्या जब कभी, जाअकुम लाया तुम्हारे पास, रसूलुम कोई रसूल, बिमा जो, लाता हवा अनफुसुकुम, ला यानी क्या? नहीं, तहवा नहीं पसंद किया, डिसलाइक्ड, अनफुसुकुम तुम्हारी नफ्सों, जो तुमको नहीं अच्छा लगा। तो क्या किया तुमने? इस्तकबर तुम, इस्तकबर में तकब्बुर वर्ड है, isn't it? इस्तकबर, तकब्बुर किया तुम यानी तुम, तुमने। हाउ नाइस, तुम का मतलब तुम ही होता है। तो क्या किया? तकब्बुर किया तुमने, एरोगेंट हो गए तुम। फरीकन, फिर एक फरीक, फरीक यानी क्या? ग्रुप, फिरका, फिरका इसी से बना है, फरीक फिरका ग्रुप। कज़्ज़ब तुम, झुटलाया तुमने, एक ग्रुप ने झुटलाया। वह फरीकन और एक ग्रुप, एक फिरका, तख्तुलून तुम कत्ल करने लगे, एक ग्रुप कत्ल करने लगा, मारने लगा। ये आयत नंबर क्या है? 87। इसको इंग्लिश में करते हैं इंशाल्लाह। आयत नंबर 87, वलकद आतैना, and indeed
we gave Musa alayhi salam al-kitab, Taurat, wa kaffayna, and one after another, min ba'dihi bir-rusuli. After Musa alayhi salam, we sent many rasul, many messengers. Wa atayna, and we gave Isa ibn Maryam, Isa alayhi salam, the son of Maryam alayhi salam, al-bayyinati, clear signs, mu'jizat. Wa ayyadnahu, and we supported him, we helped him, biruhil Qudus, with the Holy Spirit, that is Jibril alayhi salam, the head of the angels. Istakbartum, then what did you do? Sorry. Afakullama, then whenever ja'akum, whenever came to you, rusulum, any rasul, any messenger, bima, with la tahwa, whatever you disliked, whatever you did not desire, anfusakum, yourself, then what did you do? Istakbartum, then you acted arrogantly, you became arrogant. जब तुमको कोई बात अच्छी नहीं लगी जो रसूल ने लाई, तो तुम arrogant बन गए, जिद पर अड़ गए. फरीकन, then one of the groups, a party, कज़्ज़बतुम, you denied the messengers of Allah. वफरीकन तक़्तुलून, and one group, one party started killing them, murdering them. Whom? The messengers. Allahu Akbar. समझते हैं इस आयत को, आयत नंबर 87, कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने यानी मूसा अलैहिस्सलाम को जो किताब नाजिल की, तौरात, तो किसकी किताब है? अल्लाह की. किसने नाजिल की? अल्लाह ने. किस पर? अपने रसूल मूसा अलैहिस्सलाम पर. तो अल्लाह ने किताब क्यों नाजिल की? एज अ गाइडेंस. और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक के बाद एक कई रसूल हमने भेजे. फिर हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और फिर उनको भी किताब नाजिल की, इंजील. एक्सक्यूज मी. और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई मौजज़े अता किए थे. क्या क्या मौजज़े अता किए थे ईसा अलैहिस्सलाम को, पता है? नंबर 1, हाँ आप बोलिए 1 by 1 चांद आंटी. वो नाम लेके कब्रिस्तान जाते तो वो मुर्दों को जिंदा करते. हाँ, तो नंबर 1 हम ऐसे कहेंगे. नंबर 1, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा करते. ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मौजज़ा दिया था अल्लाह ने? बिइज़्निल्लाह. दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा करते. बट नॉट फॉर एवर, इट वुड बी अ शॉर्ट वाइल. नंबर 2, जो बाय बर्थ, हाँ, अंधे होते उनके हाथ पे उनकी आंखों पे हाथ फिराते तो उनको नाबिना से बिना हो जाते और आंख आ जाती वापस रोशनी. यस, दैट मीन्स कि जो बाय बर्थ, बाद में नहीं, जो बाय बर्थ अगर कोई ब्लाइंड बॉर्न हुआ है, इफ एनीबॉडी इज बॉर्न ब्लाइंड बाय बर्थ, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था. ये जो बय्यिनात वर्ड है यहाँ पर, कि ईसा अलैहिस्सलाम उस नाबिना यानी अंधे यानी ब्लाइंड की आंखों पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखों में रोशनी आ जाती. He could see once again. अल्हम्दुलिल्लाह. नंबर 3, जिसको कोड़ी की बीमारी होती तो उन पे भी वो हाथ फेरते तो उनको शिफा मिल जाती अल्लाह के इज़्ज़त से.
यस, जो लेप्रेसी का मरीज होता है, जो हाथ पर, बॉडी पर, स्किन पर जो व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, लेप्रेसी कोढ़, तो उसके स्किन पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से बेइज्निल्लाह वो कोढ़ का मरीज भी ठीक हो जाता। नंबर 4, मिट्टी से एक परिंदा बनाते, मिट्टी से एक परिंदे का शेप बनाते और फिर उसमें अल्लाह के हुक्म से फूंक मारते तो उस परिंदे में जान आ जाती और वो परिंदा उड़ने लगता हवा में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक चौथा मौजज़ा था। और भी बहुत से थे कि वो बता देते कि कल तुमने क्या खाया, कल तुमने क्या खाया था। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन्हें कई मौजज़ात दिए हुए थे। These are called the clear signs. अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हारी मदद की बिरूहिल कुदूस, जिब्रील अमीन के जरिए। क्या क्या मदद की? कि नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। तो जिब्रील अमीन ने माँ मरियम को आकर ये खुशखबरी दी कि अल्लाह ताला आपको आपके बतन से, आपके पेट से एक बच्चा पैदा करने वाले हैं और वो बच्चा क्या होगा? अल्लाह का रसूल होगा और वो तौरात और इंजील का हाफिज होगा और अल्लाह ताला उसे कई मौजज़ात अता करेंगे। तो माँ मरियम ने क्या कहा था कि मुझे तो किसी इंसान ने नहीं छुआ, I have not had any relationship with any man, तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तो यही एक सबसे बड़ा मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया सिर्फ माँ के जरिए। फिर और जिब्रील अमीन के जरिए क्या किया कि जब वो बच्चा गोदी में था तो बोले कि अब मैं अपने लोगों के पास क्या जाकर मैं बोलूंगी उनको कि ये कहाँ से आया बच्चा। तो जिब्रील अमीन ने अल्लाह के हुक्म से ये बताया कि आप कह देना इशारे से अपने होठों पर उंगली रख के कि मैं चुप का रोजा है मेरा। वो जमाने में चुप का रोजा होता था कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉक। तो जब उन्होंने इशारा किया बच्चे की तरफ, बेबी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो नेक्स्ट मौजज़ा ये था कि बेबी ईसा अलैहिस्सलाम, न्यू बॉर्न बेबी, अल्लाह के हुक्म से बोल पड़े और कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ने मुझे बगैर बाप के पैदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर नेक्स्ट मौजज़ा क्या था कि ईसा अलैहिस्सलाम को जब ये लोग सूली चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनको डायरेक्टली रूह और जिस्म के साथ उठा लिया। हम लोग जब हम इंसानों को नॉर्मल मौत आती है तो हमारी बॉडी यहीं रहती है ना, और सिर्फ रूह ले लेते हैं मलिकुल मौत अल्लाह के हुक्म से। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम सोल, यूनिक पर्सनालिटी कि अल्लाह के हुक्म से उनको जिस्म और रूह दोनों, बॉडी एंड सोल, डायरेक्टली अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। तो अभी उनकी लाइफ बाकी है। अब वो दोबारा दुनिया में आएंगे इंशाअल्लाह और अपनी बची हुई जिंदगी एज अ उम्मते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गुजारेंगे और उस वक्त तमाम ईसाई भी ईमान ले आएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम आकर सलीब को तोड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे मौजज़ात यहाँ पर अल्लाह ताला हमें बता रहे, ये हम कुरान में आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि इसका जिक्र आया है, सो हमने इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लिया। फिर अल्लाह ताला क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या जब कभी कोई रसूल आए और जो कुछ रसूल लाए वो किसका ऑर्डर्स लाए, तमाम रसूलों ने किसका मैसेज लेकर आए? अल्लाह सुभान ताला का। Yes, every messenger brought the message of Allah. तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि जब भी कोई रसूल आए तो
जो कुछ तुमको पसंद नहीं आया उनके मैसेज में से, जो पसंद आया वो तुमने ले लिया, जो तुमको पसंद नहीं आया तो तुमने क्या किया, तकब्बुर किया, तुम एरोगेंट हो गए, तुम जिद पर अड़ गए, और इसी जिद में आकर दो ग्रुप्स बन गए। कुछ ग्रुप तो इतने हद से आगे बढ़ गए कि उन्होंने रसूलों को रसूल मानने से इनकार कर दिया, कहा कि तुम तो झूठे हो, तुम रसूल हो ही नहीं, हम क्यों तुम्हारी बात माने। तो जब एक ग्रुप कहे कि तुम रसूल नहीं हो, अल्लाह के पैगंबर नहीं हो, तो दूसरे लोगों के दिलों में भी कंफ्यूजन आ जाता है ना, वो भी डाउट में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फितना होता है। और दूसरा एक ग्रुप तो उससे भी आगे निकल गया कि उन्होंने अल्लाह के नबियों का कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। किन किन नबियों का कत्ल हुआ था, लिख लीजिए। याया अलैहिस्सलाम और जकरिया अलैहिस्सलाम। यस, वेरी गुड। जकरिया अलैहिस्सलाम और उन्हीं के बेटे यहया अलैहिस्सलाम दोनों को कत्ल कर दिया था, और ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई जानलेवा हमले किए। अल्लाहु अकबर। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अच्छा, जब तुमको कोई अल्लाह का हुक्म पसंद नहीं आता तो तुम अपने नबियों के साथ ये करते हो। और फिर यही बात अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं कि आप इतने गमगीन ना हो, डोंट बी सो सैड, कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनको कितना सताया आप देख चुके हो, हम अभी पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जब ईसा अलैहिस्सलाम आए, और ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी मौजज़े जो हमने अभी डिस्कस किए, कितने मौजज़े, और ऐसे यूनिक मौजज़े किसी नबी को नहीं दिए गए थे। ऐसे मौजज़े देखने के बाद भी अगर उनकी कौम ने या तो उनको झुटलाया, या तो फिर दूसरे नबियों का कत्ल किया, या इन्हीं को सूली चढ़ाने की कोशिश भी कर ली। तो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे नबियों के साथ भी ये होता आया है, आप भी मायूस ना हो। अगर आपकी कौम, आपकी उम्मत, आपके लोग या आपके इर्द गिर्द जो दुश्मनी कर रहे हैं, अगर वो आपको झुटलाते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं हो, नाउजुबिल्लाह, तो आप बिल्कुल पहले नहीं हो, आपसे पहले नबियों के साथ भी यही कुछ हुआ है। अगर आप पर जानलेवा हमला करते हैं, दुश्मनी करते हैं, आपके साथ जंग करते हैं, तो ये आपसे पहले नबियों के साथ भी हुआ है। तो ये सारी आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए है, और हमारे लिए इबरत है कि हम, अब हमारे बीच कोई नबी कोई रसूल तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन हमें अल्लाह के हर रसूल, हर नबी पर ईमान लाना है, और कुरान पाक में जो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, हमें उसकी तस्दीक करनी है इंशाअल्लाह। और जो भी हमें अल्लाह और अल्लाह की किताब के बारे में इल्म देते हैं, तो वहां पर भी हमें एरोगेंट नहीं बनना है, तकब्बुर नहीं करना है इंशाअल्लाह। This is the moral we must take. Okay. What are the morals that we studied, Chananti? हमको जो जैसे हुक्म दिए गए हैं अल्लाह की तरफ से हमको मानना है। हमको हमारी किताब, हमको आखिरी नबी की मिली है कुरान, उस पे हमको अमल करना है, ईमान लाना है, और हमको ये भाइयों से न खून बहाना है, न हमको उनको घरों से निकालना है, न दुश्मनी पैदा करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। यस, माशाल्लाह। और तकब्बुर नहीं करना। तकब्बुर के बारे में आता है कि तकब्बुर सबसे पहले किसने किया था, बताओ? फिरौन से पहले किसने तकब्बुर किया था? इब्लीस ने।
इब्लीस ने, वेरी गुड। तो उसके तकब्बुर की वजह से अभी उसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? जहन्नम। कहा जाएगा वो जहन्नम में मरदूद है, कर्स्ड वन है। तो तकब्बुर जो है वो इंसान को जहन्नम में ले जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है तो वो जहन्नम में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। राई का दाना कितना छोटा होता है, जरा क्लास के बाद किचन में जाकर एक राई का दाना हाथ में लेकर देखना। सबने देखा है, लेकिन फिर से जाके एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक राई का दाना अपने हाथ में लेना, उस पे उंगली फेरना और फिर इंशाल्लाह अपने तकब्बुर को भी हम उतना भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। अगर है भी एरोगेंस है भी, हम सब के अंदर कूट कूट के भरा है तकब्बुर, एरोगेंस, शो ऑफ, बड़प्पन, लेकिन ये वाली हदीस हमें क्या बताती है कि राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है तो जन्नत में नहीं जा सकते। तो फिर क्या करेंगे बताओ? एक और हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन तकब्बुर करने वाले चींटियों की शक्ल में होंगे। चींटी समझते हैं? व्हाट साइज इज द चींटी? Very tiny. माइक्रोस्कोपिक है ना, इतनी छोटी नहीं, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं होती, हम उसको देख सकते हैं आंखों से, बट इतनी छोटी होती है चींटी। और जिसका तकब्बुर होता है, वो तकब्बुर का मतलब क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना। तो जो अपने आप को दुनिया में इतना बड़ा समझता है तो कयामत के दिन उसको अल्लाह ताला बिल्कुल छोटी चींटी के जैसा बना देंगे। समझ रहे? ये पनिशमेंट का एक पार्ट है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। तुम एरोगेंट बन रहे थे, सबसे बड़े बनना चाहते थे, तो अल्लाह ने तुमको क्या कर दिया? सबसे छोटा चींटी के जैसा बना दिया कयामत के दिन। अब बताओ, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, तो हमारी हुई आयत नंबर 87 तक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।